શિવપુરાણમાં કહ્યું પણ છે, જ્યોતિર્લિંગ સ્થાનની અંદર રહેવાનો અનંત મહિમા છે. રહેવું જોઈએ માણસ. તો યાદી માટે છે. તો પ્રથમ સૌરાષ્ટ્રે સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ ઉજ્જૈન્યા મહાકાલમ ઓંકારમ મમલેશ્વરમ પરલ્યા વૈદ્યનાથમ ચ દાકિન્યા ભીમશંકરમ સેતુ બંધેતુ રામેશમ નાગેશમ દારુકાવન વારાણસ્યામ તુ વિશ્વેશમ ત્રયંબકમ ગૌતમી પતે હિમાલયે તુ કેદારમ ભૂષણેશમ ચ શિવાલયે એતાની જ્યોતિર્લિંગાની સાયં પ્રાતઃ પઠેમ સપ્ત જન્મ કૃતં પાપં સ્મરણેન વિનશ્યતિ સ્મરણેન વિનશ્યતિ. કેટલો સરળ ઉપાય છે ભાઈ. એક જન્મની 7 જન્મોના પાપમાંથી જો છૂટવું હોય તો દરેક વ્યક્તિએ સંધ્યા સમયે 12 જ્યોતિર્લિંગને યાદ કરવા. જો પહેલા સંધ્યા, અને મહાદેવજી સંધ્યાના દેવ છે. संध्या मतलब धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है, अंधकार का प्रारंभ होने वाला है, अंधकार का प्रारंभ होने वाला है ना. इसीलिए संध्या. शिव क्या है? शिव ज्योति है. હવે તો લાઇટો બધી થી, બાકી દીવાબત્તી તૈયાર કરવાના, ફાનસમાં કેરોસીન પૂરવાનું, ફાનસના કાચના પોટા ઉજાળવાના, હે ને, દીવામાં કેરોસીન હતું કે નહીં? સંધ્યા સમયે દીવાબત્તીની તૈયારી કરતા કે નહીં આપણે? પેલો કાચનો ફાનસનો પોટો હવે આમ અંદર ઉતરતા ક્યારેક કાંઈ લાગી ગયું છે, ઘણાને લાગ્યું છે ને આમાં અંદર આમ કરતા કરતા. એ દિવસો આમાં અત્યારના બાળકોને આ બધું જોવા ના મળે, અને આપણે કેટલા ભાગ્યવાન છે કે આપણે આ બધું જોયું છે. ફાનસના અંજવાળે આપણે એસએસસી પાસ કર્યું, આપણે હાઈ સેકન્ડરી ભણ્યા ફાનસના અંજવાળે. કેરોસીનનો દીવો, ડબ્બા પર ડબ્બો મૂકવાનો, હે ને, એ ડબ્બા ઉપર કેરોસીનનો દીવો હોય, પછી અહીંયા બેઠા બેઠા દીવેથી વાંચવાનું. સવાર થાય તો નાક કાળું થઈ જાય, પેલો કેરોસીનનો દીવાનો ધુમાડો નીકળે ને એટલે નાક કાળું થઈ જાય. આ બધા દિવસો ઘણા વડીલોએ આ અનુભવ કર્યો છે. કેવી મજા લૂંટી છે આપણે. આમ ચૂલો હોય ને માં રોટલા ઘડતી હોય ને, રોટલાની સુગંધ આવતી હોય, હે, માં ફૂંક મારતી હોય ને, પેલો આમ જેને ધીરે ચૂલો જગતો હોય, માં રોટલા કરતી હોય, આપણે બાજુમાં બેઠા હોય. એ દુનિયા ભૂલાઈ ગયું. હવેના બાળકોને આ દુનિયા જોવા ના મળે. આપણને જે જોવા મળ્યું છે, ઘરમાં સેટી નહોતી અને અપસેટે નહોતા. એ ખાટલા પર લહેર કરતા હતા, હે, ખાટલા પર હોતા, પાંગતું તાણતા હતા, સૂતરના ભરેલા ખાટલા, અને એ પછી પાટી પલંગ હોય ને ઢોલિયા હોય ને, એ આપણી દુનિયા હતી. એમાં હું તમને કોઈ ખાટલામાં ક્યારેક માકડ પડે, બાપા બાપા, એમાં જે મહેમાનને રોકવાનો હોય ને, માકડવાળા ખાટલામાં ઉડાવવાનો મહેમાનને.
માકડ વાળા ખાટલામાં મહેમાન હોય ભાગી જાય બીજે દિવસે ઢરડ 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 કરતો હોય માકડ માકડ માકડે આમાંથી ઘણા માર્યા હશે કે નહીં? સાચું બોલજો. અત્યારના છોકરાઓ તો માકડે જોયા નહીં હોય. માકડ તો માર્યા આપણે ટોલાઓને માર્યા છે. અને ટોલો કેટલો શક્તિશાળી, તલવારથી ન મળે, બંદૂકથી ન મરે, ચપ્પુથી ન મરે, તોપથી ન મરે. ટોલો હંમેશા નખથી જ મરે. આ તમે કેટલું મોટું વિજ્ઞાન! ટોલાને મારવા માટે નખ જ જોઈએ. ટક, એ ટક બોલે તો જ મર્યો. એ આનંદ આપણે લૂંટ્યો. હવે તો શેમ્પુ આવી ગયા એટલે તો ટોલાએ જતા રહ્યા. ટોલાની દુનિયા સમાપ્ત થઈ ગઈ. તમે જોતું ખરા, ટોલા ગયા રોડ ઉપર ટોલ ટેક્સ આવી ગયા. કેટલા ટોલ ટેક્સ, જ્યાં જવું ટોલ ટેક્સ ટોલ ટેક્સ. નાના માણસનું તો કામ જ નથી. બોલો, ટોલા ગયા ટોલ ટેક્સ આવ્યા. કેવી સુંદર સુંદર આપણી દુનિયા હતી. संध्या समय किस लिए? महादेव जी संध्या का देव है, ज्योति देने वाला, प्रकाश देने वाला. संध्या समय जो भगवान शिव जी को याद करता है उसकी जीवन की संध्या मंगलमय बनेगी. जीवन की संध्या वृद्धावस्था, बुढ़ापा, वो संध्या है ना. वृद्धावस्था के बाद धीरे धीरे सूर्य अस्त होने वाला है. सूर्य डूब जाएगा, अंधेरा का प्रारंभ होगा. तब शिव नाम की ज्योति आपको प्रकाश देने वाली है. इसलिए शिव जी की साधना जरूर प्रातः काल, मध्यान्ह काल, लेकिन महादेव की पूजा की महिमा तो संध्या काल है. कल मुझे हमारे जामनगर हमारा एक मंत्र है, छोटा सा है, मुझे प्रश्न पूछा था कि तांडव स्तोत्र कब बोलना चाहिए. मैंने कहा कि संध्या समय तांडव स्तोत्र बोलना चाहिए. जो तांडव स्तोत्र संध्या के समय बोलेगा उनके जीवन में कोई अंधकार नहीं प्रवेश करेगा. प्रकाश देने वाले तांडव, रावण क्रुद्ध तांडव अभी नहीं बोलना है. इसीलिए संध्या समय कोई भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, कहीं भी स्थान पर हो, लेकिन संध्या समय भगवान महादेव को विशेष प्रकार से याद करें. शिव महापड़ ग्रंथ में ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को कहा, बाबा अब तो संध्या होने वाली. संध्या मतलब वृद्धावस्था, जर्जरित शरीर. और शिव पुराण में तो वहां तक कहा है कि जो कोई बाल्यावस्था से महादेव की उपासना करता है, विष्णु ने भी देवताओं को वचन दिया है और शिव महापड़ ग्रंथ में भी और मंत्र में भी कहा है कि जो कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करता है, संपूर्ण महादेव को समर्पित है, उनका शरीर जर्जरित दिखाई देता है लेकिन उनका मन कभी वृद्धावस्था से घेरता नहीं, उसके जीवन में कोई बुढ़ापा नहीं आता. जो महादेव का भक्त है, जन्म मृत्यु जरा, जरा का अर्थ क्या है? जर्जरित होना, वृद्धावस्था, जर्जरित, बुढ़ा हो जाना, बहुत भयानक है. ये दिन बड़े बड़े खतरनाक दिन होते हैं, लेकिन जिनके पास महादेव की भक्ति है उनके जीवन में कोई वृद्धावस्था का भास भी नहीं है. मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी. राजकोट में पूज्य श्री बापू की कथा हो रही थी तो किसी ने पूछा कि बापू आप युवानी में क्या करते थे? तो बापू ने कहा अब युवानी आने तो दे, जी भैया आई भी नहीं है. ये कितनी बड़ी बात हुई है. अभी युवानी आई भी, युवानी बाकी है अभी. यह महादेव के साधना संध्या समय. ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान अब संध्या होने वाली है, सूर्य अस्त होने वाला है. कभी आपके पास हमने कुछ भी नहीं मांगा, भगवान. शिव की स्तुति करने लगे, भगवान महादेव पधारे, मैं प्रसन्न हो ऋषि मुनियों. और ऋषि मुनियों ने क्षमा याचना मांगी, भगवान हमारे जीवन में हमने आपकी भक्ति तो की लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्गुण रहा हमारे जीवन में. शिव ने कहा कि एक पल भी मुझे आप छोड़ते नहीं है, एक पल भी मुझे आप भूलते नहीं, और आप कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बड़े दुर्गुण रहा, हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलती रही. क्या गलती रही? तब ऋषि मुनियों ने महादेव को कहा था, महादेव कभी कभी हम आपको भूल जाते थे, कभी कभी एक पल के लिए हम आपको छोड़ देते थे, एक पल के लिए हम आपको छोड़ देते. वो हमारी सबसे बड़ी भूल, वो हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण है. एक पल के लिए हम छोड़ देते आपको. तो हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी याद करते हैं. ये लोग कभी कभी भूल जाते हैं, एक पल के लिए महादेव को छोड़ देते हैं. ये हमारा बहुत बड़ा दुर्गुण रहा. ये क्या सूक्ष्म दृष्टि रही होगी महात्माओं की. भगवान कुछ मांगने की इच्छा तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं
एक कोने में ऐसी मांगने की इच्छा हो रही है। और उपमन्यु ने महादेव को कहा था, महादेव जी मुझे भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो अव्यभिचारणी भक्ति चाहिए, व्यभिचारणी नहीं। मेरी भक्ति में कोई अपेक्षा रहे, मेरी भक्ति में कोई मांगने की इच्छा रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसी भक्ति नहीं, मुझे तो अव्यभिचारणी, व्यभिचारणी नहीं। मेरी भक्ति में कोई मुक्ति और मोक्ष की भी अपेक्षा न रहे, कुछ भी इच्छा न रहे, बिन शर्ती भगवान मैं आपकी भक्ति करूं। ये उपमन्यु ने महादेव के पास से मांगा था। यहां ऋषि मुनियों ने कहा कि महादेव बस कुछ मांगने की इच्छा नहीं पे, लेकिन एक मांगने की इच्छा हो रही है। महादेव ने कहा मांगो। तब शिव भक्तों ने, ऋषि मुनियों ने कहा भगवान हम बहुत भाग्यवान हैं, हम महादेव के भक्त, हम आपके भक्त हैं, लेकिन कोई हमारा कर्म बाकी है, भोगने के लिए कोई कर्म के चक्करों में हमको फरना है, तो भगवान और दूसरा आप जन्म देना चाहते हैं तो एक विनंती, मनुष्य कोटि में तो जन्म मिल में महादेव आपकी भक्ति हो रही है, ऐसे शिव भक्त कुल में हम सबको जन्म मिलना चाहिए। महादेव, इस श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। कूले बम भजनम ते अस्तु सर्वदा। कितनी सुंदर बात है ये शिव महापुराण ग्रंथ का। ये सुंदर भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता यत्र त्वं नहीं देवता। अन्य देवता नहीं, नहीं नहीं, अन्य कोई देवता हो नहीं, महादेव जी आपकी भक्ति मिले। कितनी सुंदर बड़ी बात। ये भजन हमारे जजमान श्री परम शिव भक्त हमारी दक्षा बहन का प्रिय भजन है। बाबा आपके भक्त कुल में हमारा जन्म तो मिले, लेकिन भगवान जारे जारे जन्म મળે ત્યારે ત્યારે ભગવાન આપની સેવા કરવાનો અવસર મળે, આપનું વર્ચન, આપનું ભજન મળે, આપની ભક્તિ મળે। ભગવાન ये शिव महापुराण ग्रंथ में ये श्लोक है। ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के आगे मांगा, ऐसे कुल में जन्म मिले जिन कुल में महादेव आपकी उपासना हो रही है। एक बात कहूं, आपके माता पिता जो महादेव का भक्त है ना, तो आप जैसा कोई भाग्यवान जीव नहीं है। अब शिव भक्त कुल में आपका अवतरण हुआ है, आपके माता पिता महादेव की भक्ति कर रहे हैं। और हमारा जजमान महेश भाई तो कितने भाग्य, उसके बाप का नाम है शंकर लाल, उसका नाम तो महेश है, लेकिन उसके पिता का नाम भी शंकर लाल। लेकिन महेश भाई का बेटा हमारा भोलू, भोलू हंसता रहता है। भोलू के मुख पर देखना अनिल भाई प्रसन्नता रहती, देखो ये टेलीविजन में देखो, ये सामने देखो, इसके मुख पर प्रसन्नता रहती है। ये 3 घंटे हंसता रहता है। एक बात कहूं बहनों, भाइयों, अब तो भाइयों जाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठे रहूं। अब तो भाइयों के लिए ब्यूटी पार्लर है, पार्लर, लेकिन ये सही मेकअप नहीं है। आपके मुख की मुस्कुराहट वही आपका मेकअप है। आपके मुख पर मुस्कुराहट है तो दुनिया आपके साथ है। आपके मुख पर मुस्कुराहट है तो दुनिया आपके साथ है, वरना आंसुओं की जगह तो आंख में भी नहीं है। इसलिए किसी के सामने रोना धोना नहीं, मस्ती से रहो, कुछ भी जीवन में हो। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते तुम सेवारा चरण रहेंगे तेरे। ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरे, करते तुम सेवा
सितारे सब कुछ तूने बनाया। हो दुनिया बनाने वाले ये सब तेरे माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। आशीर्वाद तुम्हारा बोले ये संकट हारे, बोले तेरे नाम से ये जिंदगी हमारी, ये जिंदगी हमारी। सुन लो बोले बाबा अर्ज हमारी, यह अर्ज हमारी। करेंगे सेवा इस जीवन में तारो नाम हमारे, बोले तेरे नाम से ये जिंदगी हमारी, ये जिंदगी हमारी। ताली पड़े तो टाल ना पड़े। ब्रजेश, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। ये जिंदगी हमारे। सुन लो बोले बाबा अर्ज हमारे, ये अर्ज हमारे। करेंगे सेवा इस जीवन में तारो नाम हमारे, बोले तेरे नाम से ये जिंदगी हमारी, ये जिंदगी हमारी। हे महादेव, बाबा को याद करे। महादेव सुनले कैलास, हे सर्वेश्वर, हे भुवनेश्वर, हे कालेश्वर, हे महाकालेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर, हे भालेश्वर, हे भूतेश्वर, हे भाणेश्वर। महादेव, महादेव, महादेव। महादेव महादेव, महादेव। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। हो जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कर दे तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। करते तुमसे वादा ताल में ताली। शरण रहेंगे तेरी। शरण रहेंगे तेरी। महादेव
लोक नवखंड में मेरे शिव से बड़ा न कोई, मेरे शिव से बड़ा ओ महादेव शंभो महाविनाशक हलाहल लिया कंठ मेरा। महाविनाशक हलाहल लिया कंठ मेरा। जीवों के रक्षक सदा शिव संकल्प विचार। जीवों के रक्षक सदा शिव संकल्प अखंड ब्रह्मांड से चक्र देवा। कारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा है। अकांडं ब्रह्मांड क्षयचकित देवा सुरदीपा विधेयस्यासाद्य स्त्रीनयनविषं संहतवतः सकल्माषः तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि साध्यो भुवन भयभङ्ग व्यसनिनः। भुवन भयभङ्ग चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरीविनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं त्याद्वदशिव